Hello students, good morning. Students, today is 11th November 2020. Your chapter 6 decimal numbers was going on. In the last class, I have finished two parts of worksheet. Today I want to continue from the C part. Okay. So in the C part, the question number 2 has been given. A tower is 6.84 meter tall. A tree next to it is 1 meter taller than the tower. How tall is the tree? So look here. First you will write here. Length of tower is equal to 6.84 meter. Okay. Then here it has been given a tree next to it is 1 meter taller than the tower. So here you will write tree is 1 meter taller than the tower. Therefore, length of the tree is equal to, it means tree क्या है हमारा, टावर की लेंथ से 1 मीटर लंबा है. So here you will add it. It means 6.84, that is the length of the tower, plus 1 that is the taller than the tower. यानी पेड़ जो है उतना लंबा है. So here you will add it 6.84 plus, here you will convert it in the improper fraction. So 10 into 1 is equal to 10. Okay. So 10 into 1 plus 1/10. So after that you will write it here as like this, 6.84 plus 10 10, 10 plus 1/10. So 6.84 plus 11/10. So 1 और 10 इसके नीचे कोई जिस डिजिट के नीचे कोई भी नंबर ना दिया हो डिनोमिनेटर में, सो मुझे 1 मानते हैं. 1 और 10 का एलसीएम 10 आएगा. ओके. 1 से 10 में डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा, 1 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 10 में डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा हम उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि 1 से हमने 10 में डिवाइड किया, देन वी विल गॉट 10. देन आफ्टर दैट 10 आपको मिला, 1 से 10 डिवाइड करने के बाद आपने 10 से 6.84 में मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गॉट 68.4 प्लस. सेम पैटर्न हियर यू विल ऑल्सो फॉलो. इन 11/10 द डिनोमिनेटर इज 10. 10 से 10 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमने जब 10 से 10 में डिवाइड किया, सो वी विल गॉट 1. 1 से 11 में मल्टीप्लाई किया, 11 बन जा 11. नाउ यू विल एड इट 68.4 एंड 11 के बाद कुछ नहीं, तुम 0 लगा देंगे. डेसिमल के बाद 8 plus 1 9, 6 plus 1 7. So is equal to 79.4 meter upon 10. 79.4 upon 10 meter. 10 has been given here. So when we will divide it from 10, 79.4. So 10 7 जा 70. 79 में 70 गया. Then remaining number is 9. Then हम 4 को नोट डाउन करेंगे. So यहाँ डेसिमल लगाएंगे. Then we will note it down 4. 10 9 जा 90. 94 minus 90 is equal to 4. डेसिमल लगाए, 0 बढ़ा देंगे. 10 4 जा 40. Okay. So here we have got 7.94 watt meter. Students remember, unit लिखना मत भूलिएगा. Okay. So your answer will be, in the question it has been asked how tall is the tree. So you will write the answer. You can write it here. Answer: tree is 7.94 meter. That is your answer. Clear, students? If you have any doubt, then students you can also ask the query with me. Okay. Now question 5th. See it. In the question number 5th it has been given, a book containing 54 sheets of paper is 1.404 centimeter thick. यानी एक बुक में 54 शीट्स हैं, पेपर लगे हैं, 54 शीट्स के पेपर लगे हैं. देन बुक की थिकनेस जो है 1.404 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर? आपको ये बताना है पेपर की हर शीट की थिकनेस कितनी है. सो हियर यू विल राइट थिकनेस ऑफ 54 शीट्स ऑफ पेपर is equal to 1.404 सेंटीमीटर.
each sheet keh raha hai, it means you will containing about the thickness of one sheet of paper. So here we will write thickness of one sheet of paper is equal to, ओके 54 की थिकनेस 1.404 है, 1 की पूछ रहा है, ज्यादा दिया है कम पूछ रहा है, जब ज्यादा दिया होता है कम पूछता है तो हम डिवाइड करते हैं. सो 1.404 डिवाइडेड बाई 54. इट मीन्स यू कैन राइट इट हियर एज लाइक दिस 1.404 अपॉन 54. नाउ वी विल डिवाइड इट इन द रफ कॉलम. लुक हियर हाउ 54 then 1.404. Students, you can see it 1 से 154 से नहीं जाएगा. So here we will put, हम 4 ले लेंगे. So here we will put decimal. So 4 लेने के बाद ये नंबर कितना हो जाएगा 14 भी नहीं जाएगा. So हम क्या लेंगे, एक और नंबर लेंगे, 0 लेंगे, लेकिन यहाँ 0 बढ़ा करके तब लेंगे. Now your number is 140. So 140 will be divided by 2 times. Okay. So 54 2s are. So you will multiply. Then you can also find out the 54 2s are 4 2s are 8, 4 5s are 10, 108. Okay, so here we'll write 2 times 108. So ये अब 140 है, 140 में से 108 माइनस करेंगे क्योंकि हमने डेसिमल यहाँ लगा दिया. So 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा. 10 माइनस 8 इक्वल टू 2. 4 में से हमने 1 दे दिया, 3 बचा, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3. Then 1 में से 1 गया नथिंग. Then 4 will be noted down here. Okay. Now we will check it from which number it will be divisible. I think 6 times. So 54 6s are, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 30 plus 2 32. So 6 times it will be divisible. So you will find out 324 minus 324, it is nothing. So here we will got the answer 0.026. डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं था यहाँ. So here we can easily put the 0 what सेंटीमीटर. रिमेंबर यूनिट यूज करना कंपलसरी है. सो यू विल राइट द आंसर थिकनेस ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू 0.026 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स योर चैप्टर 6 डेसिमल नंबर has been completely finished. If you have any doubt in this chapter, then you can also ask the query with me without any hesitation. Okay students. Now students, I am starting chapter 11. The name of the chapter is time, speed and temperature. Okay. So look here, before starting this chapter, some points has been given as like a get started. Here it has been given time in real life. आपका time in real life के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है राइट AM और PM. आपको यहाँ AM और PM का यूज करना है. ओके. सो लुक हियर, when will you use AM and when will you use PM? Okay, here it has been given I get up from bed at 7. What? Listen students, अगर आप रात के 12 बजे के बाद से सुबेरे दोपहर के 12 बजे तक अगर आप कोई भी टाइम को मेंशन करते हैं तो आप AM का यूज़ करते हैं. एंड अगर दोपहर के 12 बजे के बाद से आप कोई टाइम यूज़ करते हैं देन आप उसे क्या यूज़ करते हैं, PM यूज़ करते हैं. एंड दोपहर का 12 नून आप लिखते हैं NWN नून. ओके. सो हियर इट हैज़ बीन गिवन आई गेट अप फ्रॉम बेड एट 7. मॉर्निंग में उठ रहा है. गेट फ्रॉम बेड, मॉर्निंग में उठने मतलब क्या 7 AM. ओके. यानी मैं क्या बेड से 7 बजे उठ जाता हूँ. इट मीन्स दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द मॉर्निंग टाइमिंग. सो मॉर्निंग टाइमिंग यू विल रिप्रेजेंट इट विद AM. ओके. देन बी पार्ट हैज बीन गिवन आई गो टू स्लीप एट 9. अब 9 बजे तो मॉर्निंग में तो कोई सोएगा नहीं. सो हियर इट हैज बीन गिवन आई गो टू स्लीप एट 9 PM, क्योंकि ये नाइट के बारे में कह रहा है. सो नाइट के बारे में कहने के कारण दैट विल बी यूज द PM. क्लियर. नाउ सी पार्ट हैज बीन गिवन आई हैव लंच एट स्कूल एट 12:30. ये दोपहर के 12 बजे के बाद है. ओके. 12 o'clock के बाद है नून के. सो हियर यू विल यूज PM. इट मीन्स आई हैव लंच एट स्कूल एट 12:30 PM. देन माई मैथ्स क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM. मॉर्निंग में स्टार्ट होगी मैथ की क्लास, रात को तो नहीं होगी. सो एट दैट टाइम हियर यू विल यूज AM, यानी माई मैथ्स क्लास स्टार्ट एट 11 AM. It means you can easily understand here how can you use the AM and PM. Before 12 noon
फ्रॉम 12 o'clock एट नाइट, आप रात के 12 बजे के बाद से लेकर के मॉर्निंग में दोपहर के 12 बजे तक आप क्या मानेंगे AM, एंड देन दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आप क्या मानेंगे PM. क्लियर स्टूडेंट्स? If you have any doubt regarding that type of the thing, you can also ask the query. Okay? Students, see, check what do you know point in the question number 1. Here it has been given. Write the time in two ways, after the hour and to the hour. यानी आपको after का यूज करना है, यानी कि पूरे hour बीतने के बाद कितने मिनट हुए, and to the hour means before कितने मिनट से. Okay? So here A part has been given. This is the clock has been given. Minutes after बताना है and minutes to बताना है. So look here, how can you find out it here? आप ये देख सकते हो 12 से 1 तक की गैप में 12 के बाद कितने हमारे छोटी लाइनें हैं, स्मॉल रेज हैं, 1 2 3 4 5. ओके, सेम बाकी में भी 5 है. इट मीन्स एक नंबर से आप दूसरे नंबर पे जाते हो तो कितने का गैप है, 5 लाइन्स का, स्मॉल वाली लाइन्स का गैप है. एंड यू नो अबाउट दैट दिस हैज बीन डिनोटेड द मिनट्स. एक लाइन 1 मिनट को डिनोट कर रही है, यानी 12 से अगर हम 1 पे पहुंचेंगे तो 5 मिनट होगा, 1 से 2 में पहुंचेंगे 5 मिनट, देन 2 से 3 में 5 मिनट. सो हियर यू कैन सी इट हियर इट हैज बीन गिवन, स्मॉल निडल हैज बीन गिवन बिटवीन द 3 and 4. ये 3 और 4 के मिड में दिया है. ओके, एंड बिग निडल जो दिया है वो 7 से एक लाइन पहले दिया है, बिफोर 1 लाइन. ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट इट? रिमेंबर इट, जब 3 और 4 के बीच में, सो ये इट मीन्स 3 o'clock हमारे बीत चुके हैं, बज चुके हैं. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन काउंट इट हियर. 5 मिनट्स इधर, 5 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, एंड 25 प्लस 5 30. 30 के बाद अब आप काउंटिंग करिए. यहाँ पर जो आपकी निडल रखी है कहाँ पर रखी है, 1 2 3 4. ओके, so it means 30 plus 4 is equal to 34. it means 34 minutes after 3. यानी आपको पहले क्या लेना है, राउंड ऑफ वाला टाइम लेना है, जो कंप्लीट टाइम था आपको पहले उसे देखना है. सो 3 o'clock के बाद कितने मिनट हो गए हैं, 34. सो हियर यू विल राइट 34 minutes after 3. सो यू कैन राइट इट हियर एज लाइक दिस, 34 minutes after 3. यानी 3 बजने के बाद हमारे 34 मिनट्स पास हो चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं. क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर इट हैज बीन गिवन मिनट्स टू. इट मीन्स आपको बिफोर के बारे में बताना है कि आगे का टाइम हमारा राउंड ऑफ होने में, पूरे आर बजाने में कितने मिनट बचे हैं. सो आफ्टर 3 यू नो अबाउट दैट 4 o'clock होता है. ठीक है, सो 4 o'clock में अब आप देखिए कितने मिनट आपके बचे हैं. सो हियर हम 1 मिनट को अभी रोक देते हैं. सो हम 7 से काउंट करते हैं, 7 से 8 5 मिनट, देन 5 मिनट 10, 5 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, और 1 हमने यहाँ छोड़ा. सो 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26. इट मीन्स 26 मिनट्स टू 4. यानी 4 बजने में हमारे कितने मिनट बचे हैं, 26 मिनट्स. सो हियर यू कैन राइट इट हियर, 26 मिनट्स टू 4. इट मीन्स you will write the answer, you will solve that questions, you will find out the time before and after basis. यानी हमारा राउंड ऑफ या आर कंप्लीट होने पर कितना बजा है और उसके पहले या बाद में कितना बजा है. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. In second question, A part has been given. A play started at 5:45 PM and ended at 8:20 PM. What was the duration of the play? यानी कोई नाटक है वो 5:45 PM पर, PM means I have already told you it will be represented after 12 noon. यानी ये शाम का टाइम बता रहा है क्योंकि 12 noon के बाद का टाइम है. ओके, सो 5:45 PM पर स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 8:20 PM पर, यानी वही टाइमिंग आफ्टर 12. ओके, यानी 5:45 PM पर स्टार्ट हुआ, 8:20 PM पर एंड हुआ. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द प्ले? उस प्ले का, उस नाटक का क्या ड्यूरेशन था? सो लिसन हियर, फर्स्ट यू विल राउंड ऑफ इट. 5:45 का अगला आर, कंप्लीट आर कब होगा, 6 पर. ओके, सो फ्रॉम 5:45 PM टू 6. सो हियर यू विल राइट इट हियर. अब मिनट्स को सेपरेट कर लेंगे. हियर यू राइट फ्रॉम 5:45 PM to 6 PM, duration is equal to 15 minutes. ओके, हम राउंड ऑफ पे ले रहे हैं, यानी कि जहां हमारा कंप्लीट आर आ रहा है हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं. देन आफ्टर दैट एंडिंग टाइमिंग हैज बीन गिवन 8:20. सो हियर यू लेट फ्रॉम 8 ओके to 8:20, 8 PM you can use it. From 8 PM to 8:20 PM
ड्यूरेशन इज इक्वल टू 20 मिनट्स। हमने क्या किया, मिनट्स हमने सेपरेट कर लिए, ओके। यानी अभी हम मिनट्स नहीं देखने, हमें अब कहां से देखना है, हमको देखना है 6 to 8, ओके। सो लुक हियर हाउ, सो नाउ यू विल फाइंड आउट फ्रॉम 6 PM to 8 PM। हमने पहले क्या किया, 5:45 PM से 6 PM देखा एंड देन 8 PM से 8:20 देखा। सो अब हमें ड्यूरेशन किसकी फाइंड आउट करनी है, 6 PM to 8 PM। सो फ्रॉम 6 PM to 8 PM ड्यूरेशन इज इक्वल टू, सो यू कैन सी इट हियर, 6 से 8 तक में क्या आएगा, 6 to 7 1 hour एंड 7 to 8 2 hour। सो हियर यू राइट 2 hours, ओके। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ द प्ले from 5:45 PM to 8:20 PM is equal to, अब R हमारे क्या हुए, कन्वर्ट हो गए, R आपको मिल गया, इट मीन्स 2 hours, ओके। हियर यू कैन फाइंड आउट द मिनट्स, प्लस 15 मिनट्स हमने यहां रखे थे और 20 मिनट्स यहां रखे, प्लस 15 मिनट्स एंड प्लस 20 मिनट्स, ओके। सो मिनट्स आप ऐड कर लेंगे, सो हियर यू विल गॉट 12 hours 15 plus 20 is equal to 35, 12 hours 35 minutes, okay। So you will write the answer is equal to duration of the play is equal to 2 hours 35 minutes। Clear, students? Now students, see the C part of this question. Chintu reached his uncle's village on 12th February, full stop. He left for his town on 22nd February. How long did he stay his uncle's village? यानी चिंटू जो है अंकल के विलेज में, अपने अंकल के गांव में 12 फेब को वो पहुंचा एंड उसने गांव छोड़ा कब, फॉर हिज टाउन, अपने टाउन में जाने के लिए उसने 22nd फरवरी को गांव उसने छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे हिज अंकल्स विलेज, ओके। सो हियर यू विल फाइंड आउट द डेज ओनली। सो हियर यू विल राइट डेज फ्रॉम 12th February February to 22 February is equal to, so students you can find out it here, 12 से 22 आप फाइंड आउट करेंगे, 12 देन 12 से 13, काउंटिंग ऐसे करेंगे आप, 12 से 13 ना कि 12 को भी लेंगे आप, ओके। सो यहाँ कह रहा है कितने दिन तक वो रहा, सो 12 to 13 1 day, ओके। देन 13 to 14 2 day, 14 to 15 3 day एंड 15 to 16 4th day, then 16 to 17 5th day, then 17 to 18 6th day, 18 to 19 7th day, 19 to 20 8th day, then 20 to 21 9th day and 21 to 22 10th day. So how many days you have find out? Days from 12th February to 22nd February is equal to 10, okay। इट मीन्स आपको कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ डेज फाइंड आउट करने हैं। देन आपको आंसर क्या लिखना है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे हिज अंकल्स विलेज। सो हियर यू विल राइट द आंसर ओनली, चिंटू स्टे हिज अंकल्स विलेज इज इक्वल टू 10 days, ओके। इट मीन्स यहाँ आपको क्या सिर्फ डेज फाइंड आउट करनी है बेटा, ओके। नाउ स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number 3 has been given, calculate. I want to take here B part. In B part the question has been given, 24th December was the last working day in school before the winter vacations. Okay, यानी winter vacation के पहले 24 December क्या था, last working day था स्कूल में। The school reopened on 15th January. स्कूल reopen कब हुआ, 15th January को open हुआ। For how many days was the school closed? स्कूल कितने दिन के लिए बंद था, okay। So students, here we will count it in a month wise. Firstly December दिया है and January दिया है। Students, how many days in December? I think each and everyone knows there are the 31st days in December. So here you will write December has 31st days, okay।
सो 24 दिसंबर को क्लोज हुआ है. ओके, सो फ्रॉम 24 दिसंबर 24 दिसंबर वॉज द लास्ट वर्किंग डे, यानी 24 तक क्लासेस चली हैं. इट मीन्स क्लोज कब तक हुआ है हमारा, ये 25 को हुआ है. ओके, हमने 25 क्यों लिया है बेटा, क्योंकि 24 दिसंबर लास्ट वर्किंग डे था. इट मीन्स आपको ये बताना है 24 के बाद कितने दिन तक स्कूल क्लोज था. सो इट मीन्स फ्रॉम 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर, 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर डेज इज इक्वल टू, सो 25 से आप 31 में डेज निकालेंगे. सो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay, so how many days you have find out it here? 7. Clear? So here you will write 7. Then after that the school was reopened. The school reopened on 15th Jan. Okay, it means जनवरी में स्कूल 15th में ओपन हो गया. So close कब तक था? 14th में. It means from 1st January to 14th January डेज इक्वल टू 1 से 14 तक में डेज कितने होंगे स्टूडेंट्स? 14. ओके, सो हियर क्वेश्चन हैज बीन फॉर हाउ मेनी डेज वाज द स्कूल क्लोज. सो हियर यू विल राइट देयरफॉर स्कूल क्लोज्ड फॉर डेज इक्वल टू 7 plus 14 इक्वल टू 21 days. So you will write the answer. School was closed. School was closed for 21 days. Clear students? Remember, जिस डे से हमारा स्कूल की लास्ट वर्किंग डे थी उसके बाद से हम फाइंड आउट करेंगे. सो 24 दिसंबर वाज द लास्ट वर्किंग डे. सो हम 25 से काउंट करेंगे. फर्स्ट हमने दिसंबर मंथ को अकेले किया. सो 25 से हमने 31 दिसंबर तक हमने डेज काउंट किए. देयर वर द 7 days. ओके, एंड देन आफ्टर दैट 15th जन को स्कूल रीओपन हो गया. सो व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ द हॉलीडे? 14th. सो फ्रॉम 1st जनवरी टू 14th जनवरी डेज इक्वल टू 14. ओके, 1st जन से 14th जन तक 14 डेज हुए. सो स्कूल क्लोज फॉर डेज 7 plus 14 इक्वल टू 21 days. सो दैट इज योर आंसर. स्कूल वाज क्लोज फॉर 21 days. क्लियर स्टूडेंट्स?